ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ವಫ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮುಖವಾಡದಲ್ಲಿ ವಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ 2019ಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಫ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವು ವಫ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಸೂದೆಯು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಎರಡನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಸಮಾನ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. एनडीए सरकार मुसलमानों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए लागू करी है. इसके विरोध में धरना करना आज मुसलमान को और मुस्लिम की हर एक तंजीम को ज़रूरत है. फिर भी हमें हमारे आवाम को हम खुद जागृत करना पड़ रहा है इसमें. इसी तरह आने वाले दिन आज तहसीलदार को हमें मनवी दी इसकी, ये बिल कैंसिल हो. अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिन में इसके बहुत बड़ा काफिला निकलेगा, बहुत बड़े तरीके से होराट होगा. इसे इसके लाइन से हमें अगर जान देने की भी अगर ज़रूरत पड़ी, देने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सब में ठहरेगी. इसके पहले उलमा अपने सर कटाएं इस देश की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए. लेकिन आज वो आज़ादी मिलने के बाद वो उलमा की अहमियत बिसरी है. इस देश की गवर्नमेंट जो एनडीए सरकार है, ये हिटलरशाही सरकार है. ऐसे हिटलर को भगाना इस मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है. आने वाले दिन वो भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर को दिखाएंगे. 100 काम कर को दिखाते हैं. हमें बहुत देर भी नहीं होगी. इसी के लाइन से हमारे तेरदाल असेंबली में एक विरोध में एक नायक है, वो बोल रहा था हमारी कम्युनिटी की एक कमेटी 11 जने की कमेटी बना को एसडीपीआई को मिटाने की बात करता हो. वो लफंगा आज वही 11 जने की जो कमेटी है, वो 11 जने को बुला को बोलना था कि तुम्हारे लिए जो काला कानून है इसके ज़रिए तुम आवाज़ उठाओ, हम साथ देते हैं. तो वो मुस्लिम का एक अच्छा लीडर बन सकता था. लेकिन वो कौन से बिल में बैठे आज हमें नज़र नहीं आ रहा. जब नज़र आएगा उसे हम खैर से नहीं छोड़ेंगे. ये कानून पास नहीं होने देंगे. और इस कानून के लिए बहुत सारी आने वाले दिन में बहुत सारी हम लड़ने की, सरकार से, हुकूमत से लड़ने की, हुकूमत से छीन के लेने की भी ज़रूरत पड़ी तो उस हद तक भी जाएंगे. अगर कौन सी भी तरीके से रंधे हमें जेल जाना पड़े या तो इसके लिए कुछ लड़ाई हो, क्या भी हो, गोलीबार भी करे सरकार की तरफ से, उसके लिए भी तैयार हैं. हर वक्त लेके रहेंगे हम हमारा हक. अगर सरकार से नहीं मिले तो हम छीन के भी लेंगे. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तेरदाಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಏನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಪಾಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಬರ್ದಾಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಖರೀ ಕಾನೂನು. ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಶುರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆನಪಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. NRC ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸರಿಯೋರಲ್ಲ,
ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಮಾತನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ತೇಕಿಸಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. एक तो 2024 का जो हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जारी किया है, हालांकि गलत है. क्यों गलत है बोले तो हम किसी के सरकार के पास से आस्ती लेने वाले नहीं है. सरकार कोई हमें ज़मीन दे ही भी नहीं, तो इसीलिए क्या है हम इसका मजम्मत करते हैं. क्यों मजम्मत करते हैं बोले तो ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी क्यों खुद की है बोले तो हमारे पूर्वजों ने इसे अल्लाह के वास्ते वक्फ किया है. ये वक्फ का एक मेथड रहता है, एक ये रहता है. उसमें क्या रहता है, वक्फ जो करने के बाद जो हमारी ज़मीन रहती है, मदरसा हो, दरगाह हो, या तो मस्जिदें हो या कब्रस्तान हो, जिसके पास नहीं रहता उनको वक्फ करने के बाद में ये लोग सोचते हैं कि कौम का हमारा भला करने के लिए कोई न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा. तो इसी तरह हमारे पूर्वजों ने हमें क्या किया है, वक्फ किया है. और वक्फ किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है. एक हमारा पर्सनल है, ये पर्सनली हमारी मिल्कियत है. हमें इस पर नाज होना चाहिए. और जो काला कानून जो लागू किया है, मेरे हिसाब से जो मोदी जी ने, इसको क्या है, उनका एक टारगेट है. हमारे आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर है तो 3 लोगों के पास है. एक सेंट्रल रेलवे वालों के पास, दूसरा आर्मी वालों के पास, तीसरा मुसलमानों के पास. और ये चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनके पास लेकर वो खुद से अपना एक राज चलाएं. वो प्रॉपर्टी पे अपना गवर्नमेंट का हक जताएंगे, फिर चाहे वो प्राइवेटाइजेशन पे जाएंगे. आप लोग देख रहे हैं सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं. सिर्फ देश को चलाने वाले 4 लोग हैं. 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं. हमको मालूम है इसका भी आप वही हाल करने ले, लेकिन हम बिल की मजम्मत करते हैं. आने वाले दिनों में चाहे अपना वक्त जान माल लगाकर उसे हम प्रोटेस्ट करना पड़े. जैसा आपने देखा होगा किसानों का बिल आपने पास किया था, तो एक सालों साल 700 लोग शहीद हो गए थे वहाँ पर. एक आने वाला एक कानून के ज़रिए हम अपना एहतजाज करेंगे. उसके बाद में जो आप बिल नहीं लेंगे तो उसके बाद आगे हम अपने कार्रवाई के हिसाब से हम अपना एहतजाज करके, जब तक आप बिल वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा अपना क्या है, एहतजाज करते रहेंगे. ये आज का दिन 13 तारीख को जुमा के बाद जो 2:30 बजे एक एहतजाज किया गया कम्युनिटी शहर में. ये एहतजाज करने का एक मकसद है. क्या मकसद बोले तो जो ये NDA सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये सरकार जुल्म की सरकार है. पिछले 10 सालों से लेकर जुल्म के अलावा ये कुछ भी नहीं किया आज तक. जुल्म करके कौम को तकलीफ दे के उनको लाइन में खड़ा करना, रोड पर उतारना, यही एक इनका काम है. जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब बताए, इस देश को चलाने वाले 4 लोग, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं. ये चाय के अलावा और भी दूसरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है. लेकिन ये जो बिल लाए हैं, ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है, ये बिल को किसी भी हाल में हमें जारी होने नहीं देंगे. इसको रिजेक्ट करा के रहेंगे. क्योंकि अमित शाह को भी मालूम है और मोदी को भी मालूम है कि अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे ज़्यादा रोल मुसलमानों का रहा है इस मुल्क में. उनको भगाने में हमने ज़्यादा देर नहीं लगा, लेकिन आपको भी यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंकने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा. ये समझते हुए जो है आप आगे की कार्रवाई करना है. अगर ये बिल जारी करने के लिए अगर ज़्यादा जिद्द पकड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जैसा शाहीन बाग बैठा था, उसी तरह जो है नहीं हमारा भी एक एहतजाज हमेशा के लिए एहतजाज जारी रहेगा. हम जान चली जाएंगे तो भी छोड़ेंगे नहीं, और माल जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे ना कहते.